Hello and Jain, my dear friends. Today I am here to tell you the strategy by which you can score 200 plus marks in FCAT. I'm not going to teach any topic, I'm not going to give you notes. I just share my strategy by which I scored 200 plus marks and my friends also scored 200 marks by that same strategy. My dear friends, FCAT makes you the fighter pilot and FCAT can provide you a best career option. My dear friends, this is a very easy exam and if you are aspiring for defense, then this is a gateway and with a minimum effort you can clear it and you can go to SSB, you can experience and you can get a great exposure of the defense atmosphere and you can also get a very good opportunity to serve in the defense armed forces. My dear friends, as you know that out of all the elite forces in the world, our Indian Air Force is one of that. So, my dear friends, today I, Durgesh Pratap Singh, is going to share my strategy by which I score 200 plus marks in FCAT many times. My dear friends, to score 200 plus marks is very easy. Everyone can do, but only the missing part is that we have to get a good strategy and a right strategy. So I am going to share. Please listen and please watch the video till the end. And also, if you like and if you are interested, if you feel that my strategy is correct and it will help you, then you can talk to me, you can contact to me through the description, through the number given in the description, and also you can call me anytime for any queries or for any information regarding FCAT examination or any information regarding strategy. So my dear friends, let's start the video. My dear friends, when we talk about FCAT, so FCAT is related to factual things like FCAT and CDS 2 exams are for defense services. So CDS is something where you have to have a knowledge in a very broad way, but FCAT doesn't demand that. FCAT wants only factual things. A certain questions from the GS section are being asked recently, where you have to where you need a thorough knowledge. But yeah, if you calculate overall, then the factual things and paper is very easy. So let's start the topics. First, uh, if you are aspiring for FCAT, you need to have a knowledge of defense because 2-3 questions directly asked from there. So you cannot take risk there, and those are very easy questions you can tackle very easily if you have a knowledge of current things. So 2-3 questions from defense, and then the English part plays a very crucial role because FCAT थोड़ा मतलब वैसा टफ इंग्लिश कह सकते हैं हम, है ना। तो उसके लिए ओनली प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें मतलब रूल्स का आप कुछ नहीं कर सकते ना। 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन में आप उतने टाइम में कोई मास्टरी या मतलब कुछ भी आप बहुत ज़्यादा नॉलेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, टाइम प्रेशर भी रहेगा। तो ओनली यू कैन डू कि यू कैन प्रैक्टिस PYQs and by that PYQs you have to analyze that where you are making mistakes, है ना। लाइक अगर कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही तो आप सेपरेट कॉम्प्रिहेंशन का ही मॉक दो सिर्फ, है ना। किसी को वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वोकैब के मतलब टारगेट रखो कि 100 वोकैब्स के मॉक देना है। मीन्स डोंट टारगेट टू लर्न वोकैब्स बिकॉज इफ़ यू सी एनी क्वेश्चन इन द पेपर विच यू आर गिविंग, है ना, तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा अच्छा हिट करेगा कि यार मैंने ये गलत किया था तो अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं गलत करूँगा, है ना। तो मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं कि FCAT में पढ़ा वर्ड आ जाए, बट आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा, उससे आप एलिमिनेट करोगे और अच्छा सा मतलब स्कोरिंग पार्ट में आप जा सकते हो, 50-50 बना सकते हो ना, 75 और 25 तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। ये पहला हुआ, इंग्लिश का मॉक देना है हमको, सेपरेट मॉक देना है। एक तो आप एक दिन में एक टारगेट रखो कि एक होल मॉक देना है FCAT का, उसके बाद इंग्लिश के सेपरेट कम से कम 3 से 4 मॉक देना है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, मीन्स 20-25 मिनट अगर आप देखोगे तो अराउंड 1.5 आवर में आप चार कंप्लीट कर सकते हो मैक्सिमम, मतलब 4 मैक्सिमम है, 3 से 4 रखो इंग्लिश के सेपरेट मॉक्स, है ना। और अभी टाइम है लगभग 25 डेज तो है ही, तो आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर इतना करोगे तो। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पार्ट में, क्योंकि रीजनिंग में आप 25 में 24 में गारंटी से कह सकते हो अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप 23 से नीचे तो नहीं आओगे, है ना। 1-2 क्वेश्चन वो कभी कभी माइंड नहीं वर्क करता है तो वो मैं मतलब ग्रांट ले सकते हो आप, बट बाकी 23 से नीचे नहीं आओगे।
रीजनिंग में करना क्या है, रीजनिंग में कुछ सेपरेट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। मतलब मोस्टली बच्चा जो फ्रेशर होता है वो एसएससी से कंपेयर करता है एफकेट को, लेकिन एफकेट जो है उसमें कुछ सेपरेट टॉपिक्स होते हैं। उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस करके एक रीजनिंग का टॉपिक होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस करके टॉपिक आता है। तो आपको वो सेपरेट टॉपिक्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक या कहीं से भी वो सेपरेट टॉपिक प्रैक्टिस करना है ना। मतलब तो यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस पड़े, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि रीजनिंग भी आपको 2 घंटे करनी है, अगर आप टारगेट करो 200+ मार्क्स, है ना। क्योंकि अभी मेरिट आउट बच्चे बहुत हो रहे हैं, तो वहाँ से आप वो निकालो। और 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से आता है ना, जो डिफरेंट टाइप होता है। मतलब नॉर्मल रीजनिंग जो हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ से आपको वो प्रैक्टिस करके जाना है आप। और क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन कभी कभी एफकेट अभी पूछ रहा है रिसेंट में, तो वहाँ से भी अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ। मतलब 2-3 फार्मूले होते हैं, बस वो पढ़ लो, है ना। तो वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो मान के चलो कि आप इतना कर लो, तो आप, अगर मैं ऐड करूं तो मैथ अगर मिनिमम भी देखा जाए, मतलब बहुत, अगर कोई लड़की भी वीडियो देख रही है, गर्ल्स भी देख रही हैं, तो उनकी मैथ जनरली अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप टारगेट करो कि थोड़ी मैराथन देख लो, थोड़े फार्मूलाज देख लो, बहुत ईजी है। आप 8 to 10 टारगेट कर सकते हो मैथ में भी, थोड़ा रिस्क लेके 50-50 भी पहुँचे तो टिक करके आना है। 10 क्वेश्चन मैथ से, है ना, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, एंड 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, एंड 10 क्वेश्चन जीएस से। मतलब मैं कितना मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन मैथ में, 10 क्वेश्चन जीएस में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 क्वेश्चन इंग्लिश में। इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 30, मतलब अगर आप मेहनत करोगे जितना मैं बोल रहा हूँ 25 से कम नहीं लाओ, पर मैं फिर भी आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं लेके चल रहा हूँ कि आप 20 ही लाते हो, है ना। निगेटिव काट वाट के 20 आपके बचते हैं, 20 आपके इंग्लिश में, 20 आपके रीजनिंग में, 10 आपके मैथ में, 10 आपके जीएस में। कितना हो गया? 60 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 180। अगर किस्मत सही रही, 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, आप 190 की रेंज तक पहुंच सकते हो। मतलब इतना मिनिमम तैयारी में। और जितना मैं बोल रहा हूँ, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर मॉक दोगे, मुझसे हेल्प लोगे, आपको अगर कोई डाउट हो रहा है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप फॉर श्योर 200+ मार्क्स हासिल करोगे। बच्चे गलती क्या करते हैं कि फुल मॉक देंगे, पढ़ने में लगे रहते हैं। लास्ट टाइम आए, एफकेट पढ़ने वाला एग्जाम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। एफकेट इज जस्ट द एग्जाम वेयर यू कैन गो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू कैन क्रैक इट विद मोर देन 200+ मार्क्स। And FCAT doesn't demand a very good knowledge, because if you see the level of the exam, it is not that the question is not from the depth of the syllabus. Question is from upper layer of the syllabus. The cream means अगर मिल्क होता है ना, उसमें क्रीम होती है, तो उतना सिलेबस होता है इसका। मतलब वहाँ से ही क्वेश्चन उठते हैं, तो आप बहुत टेंशन नहीं लेना है। जीएस में आप 2-3 मार्क्स डिफेंस से स्कोर करोगे। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा थोड़ा मैराथन भी देख के जाओगे, 4-4 घंटे की है, अभी 25 दिन है, उसको कंप्लीट करो अच्छे से, 2-2 बार टारगेट करो। आप देखना, आप 10 क्वेश्चन 10 से 15 नंबर आराम से इजीली गेन करोगे। थोड़ा रिस्क लेना, आप 15 तक भी जा सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ 10 ही लेके आओ। बाकी सेक्शन आप अच्छे से करो। इंग्लिश में खूब प्रैक्टिस करो। इंग्लिश जो है वो CDS के लिए भी आप अगर करोगे तो भी केवल प्रैक्टिस। कोई भी मार्केट में बोल रहे पढ़ना है, रूल है, ये है वो है, ध्यान ही मत दो, है ना। इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ठीक, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और अगर आपको हेल्प की नीड हो या कुछ हो तो आप कमेंट करना, फिर वीडियो उस पर भी बना देंगे। और अगर आपको पर्सनली कुछ चाहिए, 200+ मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करें, है ना। और अगर आपको चाहिए तो मैं मार्कशीट भी अपनी शेयर कर सकता हूँ, हाँ, मेरे 200 मार्क्स थे। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।